Good morning, students. Last time I discussed with you about the valence bond theory and its limitations. I told you this theory unable to explain the color of the complexes, and sometimes the magnetic moment which is observed actually is different from that of a valence bond theory. And valence bond theory also unable to explain why in some cases inner d orbital is utilized for hybridization, while in some cases outer d orbital is utilized for hybridization. To overcome some of the difficulties, new theory is proposed, that is crystal field theory. Crystal field theory, before I discuss about the crystal field theory, first of all, we must know about the shapes of the d orbital. There are 5 degenerate orbitals, dxy. The lobes are in the xy plane, but in between x and y axis. dyz. Lobes are in yz plane, but in between y and z axis. dxz. Lobes are in xz plane, but in between x and z axis. dx square minus y square. Lobes are along x and y axis and in the xy plane. The difference between dx square minus y square and dxy is, in case of dxy, the lobes are in between x and y, and in this case along the x and y. Otherwise, both are in a same plane. dz square is totally different from that of a other d orbital. In dz square, there is a complete lobe along z axis and concentric circle in the xy plane. So this is very essential before I discuss about the crystal field theory. The first point is the crystal field theory consider the interaction between the center metal ion and the ligand is purely electrostatic, totally ionic interactions. While valence bond theory consider that interaction between the metal and the ligand is of covalent nature. This is the basic difference. Second point is crystal field theory consider metal ion acts as a center of point for positive charge. No doubt the metal, all the particles are point particles, but metal act as a positive point center, while the ligand acts as a negative point center. But in case of an ion, it is indivisible. यह बिल्कुल हम समझ में आता है कि अनायन है तो नेगेटिव एंड मेटल आयन की तरफ हो जाएगा, लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड है, ज़्यादा लिगेंड है ही न्यूट्रल, उसमें नेगेटिव एंड कौन सा होगा? When negative end of the dipole is oriented towards the center. वाटर है तो उसका कौन सा एंड आएगा? ऑक्सीजन वाला आएगा. अमाइन है तो कौन सा एंड आएगा? नाइट्रोजन वाला आएगा. पिरिडीन है, नाइट्रोजन एंड हमारा आ गया. इथेन 1,2 डाइअमाइन है, नाइट्रोजन जो से है सेंटर मेटल की तरफ चला जाएगा. तो जो नेगेटिव एंड है वो किसकी तरफ चला जाएगा? सेंटर मेटल आयन की तरफ चला जाएगा. तो जब तक लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया, ऑल द d orbitals आर एट लोअर एनर्जी एंड डीजेनरेशन ऑफ सभी सारे डीजेनरेट बनते हैं सेम एनर्जी जब तक लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया. जो ही लिगेंड अप्रोच करेगा, दे गेट एक्साइटेड. And this degeneration is disturbed. ये d ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होंगे, यह डिपेंड करेगा हमारा कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी, उसके हिसाब से स्प्लिटिंग है.
अगर ऑक्टाहेड्रल है, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो लिगेंड को किधर से अप्रोच करना होगा? अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करना होगा. As a result, the d orbitals whose lobes are along the axis experience repulsion from the d orbital experience repulsion from the ligands, and as they shift to higher energy. Or as a third stage is this one, where कौन से ऑर्बिटल हुए जिनके लॉब्स अलोंग द एक्सिस हैं? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. इसके लिए क्या नोटेशन दी गई है? Eg और डी एफ फ्रॉम डब्ली डीजेनरेट. ऐसे में ये टू ऑर्बिटल्स हैं डी के जिनकी एनर्जी सेम हो. G means doubly degenerate. ये ऑर्बिटल हायर एनर्जी में चले गए. तो लोअर एनर्जी में कौन गए? जिनके ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस नहीं है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड्स को किधर से आना है? अलोंग द एक्सिस. तो वो रिपल्शन महसूस करें. तो जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस नहीं है, दे शिफ्ट टू लोअर एनर्जी. और वो कौन कौन से होंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड. और इसको हम क्या लिखते हैं? T2G और डी एप्सिलॉन. T2G means doubly degenerate. EG means, sorry, T2G means triply degenerate, 3 orbitals same energy, and EG means doubly degenerate, 2 orbitals same energy. ये 3 ऑर्बिटल having same energy एप्सिलॉन कहते हैं. तो 10 सेकंड का जो भी एनर्जी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेरी सेंटर. तो बेरी सेंटर से जिसकी एनर्जी नीचे जाएगी उसको वो T2G में चला जाएगा, और जो ऊपर जाएंगे वो इसमें चले जाएंगे. तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG को क्या लिखा? डेल्टा जीरो. एक्चुअल में जीरो नहीं है, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो क्या इसको वर्ड्स में शॉर्ट नोटेशन क्या दी है? CFSE. CFSE मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG या बेरी के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी डिफरेंस दो डी ऑर्बिटल के बीच में आ रहा है आफ्टर स्प्लिटिंग, उसको हम क्या बोल रहे हैं? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी. एक तो नेचर ऑफ ए मेटल आयन, greater the oxidation state, higher will the splitting energy. Suppose you have cobalt 2 and cobalt 3. Cobalt 3, in case of cobalt 3, the splitting energy is higher. Iron 2, iron 3, nickel 2, nickel 4. Nickel 4 में splitting energy ज़्यादा होगा. तो जितना oxidation state ज़्यादा होगा, splitting energy ज़्यादा होगा. Then for a same metal ion, also for a same group, as you move down the group, splitting energy increases. जो डाउन द ग्रुप है. Then nature of a ligand. Nature of a ligand के केस में ये ligand फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने लिखा हुआ है
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम किसकी है लिगेंड्स के अंदर, आई नेगेटिव की, और सबसे हाईएस्ट किसकी है, CO की। जो मैंने थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड में आपको हिंट दिया था कि CO CN बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आई नेगेटिव या नेगेटिव CN नेगेटिव बहुत ही वीक लिगेंड है, वो मैंने इसी थ्योरी के बेस पे बोला। तो जितना द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन इंक्रीजिंग लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंजमेंट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कैलिब्रेटेड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये वो नहीं है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन इंक्रीजिंग लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और जितना लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। देन ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल में बहुत ज़्यादा होती है, टेट्राहेड्रल में बहुत कम, ये सारा। तो अभी फिलहाल हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, इंस्टेंस स्प्लिटिंग को। तो बेरी सेंटर के मुकाबले में ये डिस्टेबलाइज कितना हुआ, 0.6 डेल्टा 0 और 6 d क्या हुआ। और अगर T2G में इलेक्ट्रॉन चला जाता है कितना स्टेबलाइज होगा, तो लोअर एनर्जी पे चला गया, -0.4 डेल्टा 0 इतना होगा। तो ये मैग्नीट्यूड जो सा हमें बताएगा कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कितनी है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, कैसे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर आपका D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन है, लिगेंड कैसा ही है, मेटल कैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And the Nachi difference between these two is delta 0. Suppose we have D1 configuration, कोई compound है, D1 configuration है, like TiH2O6, TiH2O6, 3 positive, D1 configuration. So it has only one d orbital, 22 atomic number। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने 4s से रिमूव किया और 1 इलेक्ट्रॉन d से चला गया, तो एक ही बचा। कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे कोई भी लिगेंड हो यहाँ पे आए, हमेशा हाई स्पीड कॉन्फ़िगरेशन होगा। एग्जाम में पूछ जाती है इस कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल थ्योरी के बेस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम लिखेंगे T2G1 EG0। EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक तो इलेक्ट्रॉन का पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, लोअर एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे जाएगा, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन देने करने के बाद ही पेयरिंग शुरू होती है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, T2G2EG0। D3 में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहीं पे आएगा T2G3EG0। क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी होगी इस केस में, -0.4 डेल्टा 0, यहाँ पे 2 × 4 डेल्टा 0 यानी कि -0.8 डेल्टा 0, और यहाँ पे 3 × -0.4 डेल्टा 0 मीन्स
माइनस 1.2 डेल्टा जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। प्रॉब्लम कब खड़ी होगी? प्रॉब्लम खड़ी होगी अगर आपका D4 कॉन्फ़िगरेशन, अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तब प्रॉब्लम पता चलेगी कि इलेक्ट्रॉन जहां पे जाएगा पेयरिंग पे जाएगा। अब दो में कंपटीशन चल रहा कि क्या स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन। If splitting energy is more, this energy difference, तो ये फिर क्या होगा? ये हायर एनर्जी पे नहीं जाएगा, यहीं पे पेयर अप हो जाएगा। अगर डेल्टा G 0 is greater than पेयरिंग एनर्जी, ये पोजीशन आ जाएगी। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? T2G 4 EG0, सॉरी T2G 3 स्प्लिटिंग एनर्जी स्मॉल, तो नहीं जाएगा यहाँ पे शिफ्ट। अगर स्प्लिटिंग ना जाए तो ना हर एनर्जी पे बढ़ जाएगा, जिसमें एनर्जी कम चाहिए उसमें जाएगा। तो यहाँ पे T2G3 EG1, तो इस केस में जो क्रिस्टल की स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा जीरो प्लस 0.6 डेल्टा जीरो मीन्स माइनस 1.2 डेल्टा जीरो प्लस 0.6 डेल्टा जीरो इज इक्वल टू 0.6 डेल्टा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओवरऑल स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन। बट इफ स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस, ये कम है, तो फिर क्या होगा उस केस में? जहां पेयरिंग हो जाएगी, तो इस केस में क्या आएगा? T2G 4 EG1 EG0, उसमें क्या है? क्यों? स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, ये एनर्जी डिफरेंस कम है। तो इस केस में क्या होगा? 4 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा जीरो इक्वल टू माइनस 1.6 डेल्टा। तो इन दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। This will show magnetic moment corresponding to 4 unpaired electron, and this will show magnetic moment corresponding to only 2 electrons, क्योंकि ये तो पेयर अप होगा। एग्जामिनेशन में और आपकी एनसीईआरटी में D5 का पूछा हुआ है, और एक इस ढंग से पूछ लिया कि मैंगनीज H2O 5 H2O 6 2 positive and Mn Cl 6 4 hexa aqua manganese 2 ion hexa cyanido manganate 2 ion, इनका स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना हो तो दोनों में तो ऑक्सीडेशन स्टेट से, इसके लिए क्या आएगा? पहले इस ढंग से 5d ऑर्बिटल दिखाएंगे, 1 2 3 4 5। ये कौन सा स्टेज आ गई?
स्टेज 1 आ गए, फिर लिगेंड अप्रोच किए, शिफ्ट टू हायर एनर्जी, पॉइंट जनरेशन डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये स्टेज 2, स्टेज 3, यहाँ पे T2G और यहाँ पे EG। वाटर वीक लिगेंड में कैटेगरी में आ रहा है। अगर वीक लिगेंड की कैटेगरी में आ रहा है तो क्या हुआ, स्प्लिटिंग एनर्जी कम हुई। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम हुई तो क्या होगा, इट विल स्प्लिट। तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा, T2G3EG2, 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए। और CFSC की वैल्यू भी बता सकते हो, क्या होगी, 3 इंटू -0.4 डेल्टा 0 प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा 0, और वैल्यू 0 डेल्टा 0 आ गया। ये भी ये -1.2, ये +1.2। यही अगर Cn हो तो Cn तो स्ट्रॉन्ग हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग CO और उससे कम Cn। तो उस केस में यहाँ पे क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, अब इसके लिए दिख रहा हूं, अब इसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी इज हाई। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो इस केस में कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, T2G T2G 5 EG 0, यानी कि 5 इंटू -0.4 डेल्टा 0, यानी कि -0.2 -2.0 डेल्टा 0 स्प्लिटिंग है। अब ये लो स्पिनिंग, दिस विल शो मैग्नेटिक मोमेंट corresponding to only 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज कितने के दिखा रहा था, एक्वा वाला 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रहा था, जबकि इस केस में कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग शुरू हो रही है तो पेयरिंग शुरू हो गई, आपको सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। यानी कि T2G में जहाँ पे अगर देखें मैग्नीज वाला केस, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, D5 में T2 और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम तो पेयर अप होगा, तो T2G 5 और यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी कम, T2G 3 EG 2। इसी ढंग से इसी तरीके से अगर आपका D6 कॉन्फ़िगरेशन हो and splitting energy is more
and splitting energy is less. स्प्लिटिंग एनर्जी मोर है, पेयर एनर्जी कम है, तो सभी के सभी किस में चले जाएंगे, P2G में। Pg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 0। पेयर अप हो जाएंगे, यानी कि इस केस में आपको इस ढंग से अरेंजमेंट मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये P2G और ये Pg। और इस केस में P2G 4 Pg2। कैसे? वन टू थ्री फोर फाइव, पेरियड स्टार्ट हो गया। ऐसे ही D7 में, लेकिन D8 में हमारा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, चाहे लिगेंड कैसा ही क्यों ना हो, स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं। D7 में ऐसे पॉसिबिलिटी है, लेकिन D8 में ऐसा नहीं है। यानी कि इन केस ऑफ निकल के केस में अगर मैं D8 देखता हूँ, D8, तो उस केस में अगर इन दोनों अरेंजमेंट को देखूं, पहला कि पेयर एनर्जी कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयर एनर्जी कम है। पेयर एनर्जी, स्प्लिट एनर्जी कम। अब स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी वही करना। स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के पेयर दोनों में सेम हो, तो इसका मतलब निकल के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर निकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, चाहे वीक लिगेंड है चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निकल, व्हाई निकल नेवर शो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। भाई इसमें सब कुछ पेयर अप हो जाता है, ऐसा नहीं हो पाया। अब चाहे NiH2O 6 टाइम्स है, NiNH3 6 अमोनिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में एक जैसा ही कॉम्प्लेक्स। दिस इज अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे स्प्लिटिंग हुई आपको बताएं। अब हम लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स को किधर से अप्रोच करना है, टेट्राहेड्रल अप्रोच करना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि लिगेंड को इधर से अप्रोच करना है, मतलब नॉट अलोंग द एक्सिस। लिगेंड्स को अलोंग द एक्सिस अप्रोच नहीं कर। कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड को अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर। तो इसके अंदर टेट्राहेड्रल के अंदर स्टार्टिंग में उसी ढंग से स्टेज 1 आ गया, देन स्टेज 2 आ गया, फिर स्प्लिटिंग होगी, लेकिन
आप नीचे कौन जाएंगे? जिनके लोब अलोंग द एक्सिस हैं, क्योंकि जिनके लोब अलोंग द एक्सिस नहीं है दे फील रिपल्शन। तो यहाँ पे T2G ऊपर चला जाएगा और EG नीचे चला जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स को अलोंग द एक्सिस अप्रोच करना था, तो जिनके लोब अलोंग द एक्सिस थे वो रिपल्शन महसूस कर रहे थे, और टेट्राहेड्रल के अंदर वो कौन रिपल्शन महसूस करेंगे? जिनके लोब अलोंग द एक्सिस नहीं है, और वो कौन है? 3 है, dxy, dyz, dxz, यानी कि T2z वाले इधर चले जाएंगे, dxy, dyz, dxz, और इधर dx square minus y square and dz square, और the energy difference between these is delta t, that is crystal stabilization energy or splitting energy for tetrahedral complex. But this value is very small in comparison to octahedral. Delta t is approximately 4/9 of delta g. एनर्जी स्मॉल होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टू हायर एनर्जी। अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, यही जाएगा। D2 है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, यही जाएगा। D3 पे डिस्प्यूट पड़ा कि ये पेयरअप हो या हायर एनर्जी पे जाए, लेकिन वो क्या करेगा? हायर एनर्जी पे जाना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लिया है ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, द रीजन इज द स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज वेरी लो, दैट इज 4/9 ऑफ डेल्टा जीरो। 50% हो, 50% क्या होता? जब 4/8 होता, 50% से भी कम वैल्यू है splitting energy की in case of tetrahedral complex, and that is why we get high magnetic moment, high spin complexes in case of tetrahedral complexes. तो अब आई बात स्क्वायर प्लेनर में क्या हो? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या हो? स्क्वायर प्लेनर में जेड एक्सिस के अलावा तो लीनियर का अप्रोच ही नहीं करना, सिर्फ किधर अप्रोच करना है? एक्स एंड वाई एक्सिस के अलावा। तो इसका मतलब इसके अंदर कैसे बनेगा एनर्जी डायग्राम? ये स्टेज 1, फिर स्टेज 2, देन सबसे नीचे कौन जाएगा और सबसे ऊपर कौन जाएगा? सबसे ऊपर वो जाएगा जिनके लोब अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस है। लीकर को किधर से अप्रोच करना है? अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। किसके लोब अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस है? वो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सबसे ऊपर जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके नीचे कौन रहेगा? इसके नीचे रहेगा dxy, इससे नीचे कौन रहेगा? इसके नीचे रहेगा dz, और लास्ट में कौन आएगा? dxz एंड dyz। ये आसान तरीका आपको बता दिया, बजाय कि 2 बार स्प्लिटिंग दिखाने के मैंने 1 बार स्प्लिटिंग दिखा दी है। इस ढंग से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये स्प्लिटिंग होगी, अदरवाइज तो क्या होगा? T2G EG, then T2G further split up, EG orbit further split up, finally they will attain this type of energy level diagram। तो इस ढंग से
आपने अभी यह मालूम कर लिया कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल में किस ढंग से कॉम्प्लेक्स लो स्पिन और हाई स्पिन बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल में किस ढंग से बनते हैं, क्रिस्टल की स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है। तो मैं नेक्स्ट टाइम इसके बेस पे कुछ डिस्कस करूँगा। अभी तक जिसको कोई भी थ्योरी बता नहीं पाई, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे ही एक्सप्लेन हो जाएगा कि दिस थ्योरी इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। और फिर इसके बाद हम इसकी